Morning, ma'am. Good morning, everyone. एक minute. Morning, ma'am. Okay, so good morning, everyone. We are going to start with today's lecture. Yes, so we will continue from where we left last time. So we were discussing the chapter, in the chapter particularly of complex analysis, we were discussing these concepts. So we already had discussed limit, and then we had continuity, and now today we'll be discussing differentiability. So in limit, I told you, let me recall you what we discussed in limits. So in limits, you will be given this kind of functions. Some function of complex variable is given, w is equal to fz, and you have to evaluate the limit, or you have to check whether that limit exists or not. So I told you that first you try with direct substitution. So if direct substitution does not give you answer, then most probably you might be getting this form 0 by 0 and infinity by infinity. So then in that case, you have to choose the path and apply the path test. So path choosing, I told you the same way. These are the possible paths, y is equal to mx depending upon the powers of x and y, how they are appearing in this f set. Accordingly, you choose, and then the limit comes does not exist because it depends upon the value of m. So these are the possible kind of questions you will be having in that. And in continuity also, I explained you, since for a function to be continuous, one of the conditions is the existence of limit. So essentially the questions of continuity will be same as the questions of the type, in which you have to prove the limit exists, or check whether it does not exist or something like that. So there is no separate question for this kind. So the same question which we did here was done here. I can give you few examples more, like if you have this kind of functions, say you have z cube plus 2z square plus 1, or you have sine z. I'm giving you different examples, they are not same. f1, f2, f3, say f4. So these kind of functions, right? So what are these types? These are polynomials, as you can see. This is trigonometric, this is exponential. So there will be some standard functions, so they will be always continuous, right? So for them you don't need to prove them, और ऐसे कोई question भी नहीं आएगा इनमें से कि check whether this is continuous or not. These are like by default continuous, so we can imply their continuity and use their continuity wherever it is required, right? So polynomials, rational functions, trigonometric functions, exponential, logarithmic functions, so they are by default continuous. और एक हमारे पास type होती है rational functions की, which I defined last time. Say you have something like z square over z minus 1 cube. Suppose you have this kind of function. This is coming in the category of rational function, a polynomial divided by another polynomial. Then this is also continuous, but the only condition is the denominator has to be non-zero, because that is what is necessary for this function to be defined. तो क्योंकि z equals to 1 तो इसकी domain में नहीं है, so it's not in its domain, so there it cannot be continuous. So wherever the denominator is becoming zero in a rational function, except at that point, at every other point the function is going to be continuous. So for continuity, this is the thing we have. And today we are going to now discuss about differentiability. So again, to remind you that since this is our function, how does it look like? U plus iota v, and z you know is x plus iy. So basically, in the while understanding the concept of limit also, I told you that it will be easier for you to grasp these concepts if you treat your z as a function of two variables, x and y. So on the analogy you can understand. So that's why we introduced path test there. Now for differentiability also, if you remember, when we discussed the concept of differentiability for function of two variables,
Actually, we did not discuss the concept of differentiability there because for a function to be differentiable, for function of two variables to be differentiable, its derivative should exist at every point. That's what the basic meaning of differentiability, that wherever we are talking about differentiability, so at that point its derivative should exist. Now because in a function of two variable there is no point of derivative, this derivative word does not exist. What exists is partial derivative, right? So if I ask you find the derivative of z is equal to fxy, you won't be able to give any answer. There will be two types of derivatives, either partial derivatives, and that are we know with respect to either x or y, or the other kind of derivative we know in which both of them are varying is the directional derivative. So if somebody is asking you find the derivative of a function of two variables, he or she must specify the direction and the point. As a itself there is no concept of the derivative or the function being differentiable, right? So same is here. Here differentiability is going to be a very general term, but we will be using the some concepts and theorems जिसके proofs हम नहीं करेंगे, so वो results आपको use करने हैं questions में for checking the differentiability. Okay, so let me just give you the definition of differentiability first. So it's similar to the one variable. So a function fz, so z is now by default we know belongs to complex number, the set of complex number. This is the notation for complex numbers. So we are not mentioning all the time, but every time z is a complex number. So a function fz is said to be differentiable if, so you have this f dash z naught is equal to, so just a minute, differentiable at a point, because firstly whichever concept we introduce it at a particular point and then we generalize to the domain. So it's differentiable at some particular point z is equal to z naught if f dash z naught. And how do you define this derivative? Limit z tending to z naught, fz minus fz naught over z minus z naught exist uniquely, right? This is the similar definition as we have for real variables. The definition is still the same, but because in real variables evaluation of limit has entirely different sense, वहां पे सिर्फ दो ही limits होती हैं, left hand limit और right hand limit, इसलिए derivative भी differentiability check करने के लिए भी दो ही directions होती हैं, left hand derivative और right hand. यहाँ पे because of the presence of infinitely many directions and infinitely many paths along each direction, ये एग्जिस्टेंस इसकी चेक करना डिफिकल्ट है. दैट इज व्हाई दिस डेफिनेशन इज जस्ट फॉर थियोरी. इससे हम इसको निकाल सकते हैं, बट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे या हम देयर इज नो वे फॉर अस टू चेक whether this limit is existing other than the path test. So you will see when we'll be doing the questions. So this is the, if this limit is existing, then whatever value it gives you, this is the value of the derivative of that function at that particular point, right? So now the further thing which we are going to introduce is some theorem. It's a theorem whose result we are going to use in the question, because right now I'm just telling you it is difficult to comprehend the overall differentiability of a function. So that's why some results have been there कि okay आप कुछ conditions check कर लो, अगर ये conditions satisfy हो जाएंगी उस function की, तब हम उसको differentiable बोल देंगे, right? लिमिट वाले तरीके से अलग है वो तरीका, ये theoretical है, वो practically built result है for questions. So let me give you the statement of that theorem. Okay, so this says that we are not going to do proofs of it, we just need to use these results. Suppose that fz, so we know that fz, how does fz looks like? Fz is u plus iv, where we know u and v both are real, the real and imaginary functions both are further functions of x and y. Suppose that fz is this and f dash z exists at z naught is equal to this. So at a particular point function is differentiable. What is the meaning of this line? F dash z exists at this, that is the function is differentiable
at z is equal to z naught. So the differentiability is given to us. Then the first order, I'll be sharing the notes with you, so you might not need to write that. Then the first order partial derivatives of u and v satisfy ux is vy, uy is minus vx. So these are the two important conditions you should remember. So let's first understand the statement of the theorem. It says that if a function is given to you and it is differentiable at a particular point, so this part is given to us, and then these conditions should be satisfied, right? So this is like if a then b. So a means हमें differentiability, just a minute, sorry, a means हमें differentiability given है, b means ये वाली condition satisfy होंगी. अब ये वाली conditions का कुछ नाम है, these were given by two mathematician Cauchy and Riemann. So these are known as Cauchy-Riemann equations भी बोलते हैं इनको, और conditions भी बोलते हैं. Cauchy-Riemann conditions भी बोला जाता है. Short में हम उनको CR conditions बोल देते हैं, because every time we have to use them very frequently in almost all the questions. So we need to remember them, that these are the CR equations or CR conditions. There's a name for them. So if a function is differentiable, then CR equations will be satisfied, right? So let's first take an example of this, how this is so. So it's like we are just validating the statement of the theorem by an example. So let's take an example of a function which we know is differentiable. So the polynomial functions, right? Z square. So this is the kind of the function which is going to be differentiable. So what is Z square? Because now I need to write Z square in this form, u plus iv. Because मुझे CR equations check करनी है. So CR equations, CR conditions verify करने के लिए मेरे पास u और v होने चाहिए. So for that, what I need to do is substitute z as x plus iy. So this will give me x square minus y square plus 2ixy. This gives me u is x square minus y square and v is 2xy. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, because we know that u and v are functions of x and y. But it's okay अगर आपने ऐसे भी लिखा है. We know that they are the functions. So now you have to verify CR conditions. So what are CR conditions? It tells you ux is vy, means the first order derivative, the first order partial derivative of u with respect to x should be same as the first order partial derivative of v with respect to y. This is one condition. The second condition is uy is minus vx. The first derivative of u with respect to y should be negative of the first order partial derivative of v with respect to x. So it's easy to remember these conditions. So to put in the values of these four derivatives, we need to find the value of these four derivatives first, right? So let's just very quickly do that. So ux, what is ux? Very easy to find. 2x. What is uy? Minus 2y. What is vx? Vx you can see is 2y. And what is vy? Vy is 2x. So you plug in the values of ux and vy here, right, in this condition, and clearly it is satisfied. 2x is 2x, so satisfied. And uy is minus 2y and vx is 2y, but this negative is already a part of the condition. So minus 2y is minus 2y. So this is also satisfied. So this question was just a validation of that theorem, that okay, we know that this function is differentiable. We already know this is differentiable, the polynomial function. So it will satisfy the CR conditions, right? But I hope this is clear to everyone. ये बहुत easy होगा हमारे पास, ये हर questions में हमें करना है. So you will have enough questions to practice for this also. We'll be doing almost in every question this usage of CR conditions. But let me tell you what was a fundamental question. The fundamental question was to check
whether a function is differentiable or not. ये तो उल्टा क्वेश्चन आंसर हो रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सीआर कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट हमारा एम था कि चेक करना एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसके लिए ये रिजल्ट नहीं है. सो दैट मीन्स इसका हमें कॉन्वर्स पता होना चाहिए कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो ये बताए कि अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट? सो I will tell you that its converse of this theorem is not true. जब भी कोई रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं तो हमें उसका कॉन्वर्स जरूर क्वेश्चन करना चाहिए. कॉन्वर्स क्या होगा इसकी स्टेटमेंट का? अब ये थ्योरम कह रही है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सीआर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो इसका कन्वर्स बनेगा दैट इफ सीआर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड then the function fz is differentiable. तो हम ये कह रहे हैं, ये इसका कॉन्वर्स का स्टेटमेंट है. तो व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज नॉट ट्रू कि अगर कोई फंक्शन सीआर कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा. This is not true. So there is some additional condition which is required along with CR conditions जिससे differentiability आएगी. Is it clear up to here? Right? So this theorem is true. We validated that. आप किसी भी फंक्शन के लिए वैलिडेट कर सकते हो प्रोवाइडेड आपको पता हो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है. बट अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब अगर सीआर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई डज नॉट मीन वो डिफरेंशिएबल है. सो वो एडिशनल कंडीशन क्या है? सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो देयर इज अनदर थ्योरम फॉर दैट, और यू कैन जस्ट say it's a result. Basically that's also the statement of a theorem. So this says that if a function fz is u plus iota v satisfy CR conditions. तो अब मैं CR conditions बस ऐसे लिख रही हूँ, आपको पता है CR conditions क्या है. ux is vy, uy is minus vx. So if a function satisfies CR conditions and ux, vx, uy, vy, ये जो चारों डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास, these are continuous. ये कंटिन्यूस फंक्शंस होने चाहिए एट z0. जिस पॉइंट की भी आप बात कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हो, उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होने चाहिए. देन fz इज डिफरेंशिएबल एट z0. तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर. कॉन्वर्स ट्रू नहीं था उस थ्योरम का, तो अकेली सीआर कंडीशन से डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती है. सीआर कंडीशंस के साथ हमें ये कंडीशन चाहिए कि वो जो डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शंस भी होने चाहिए. अब ये क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, ux vx जो डेरिवेटिव्स आएंगे, क्योंकि ये तो रियल वेरिएबल्स के फंक्शन है, तो इनकी कंटिन्यूटी इट्स यू शुड नो, आपको पता होगा. तो ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे कंडीशन. तो अगर कंटिन्यूअस हो गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा. Converse, Vidushi, I wrote this is, but this is the statement which I wrote is wrong. This is incorrect, right? We are going to do this. हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे कि इस थ्योरम का कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, कि सीआर कंडीशन तो सेटिस्फाइड होंगी बट वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट? सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फर्स्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये हमेशा नहीं होता है. सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल, सो देन इट विल बी क्लियर. सो इस तरह के आपके ट्यूट शीट में भी दो एग्जांपल्स हैं. सो वन एग्जांपल आई हैव पिक्ड फ्रॉम देयर. सो लेट्स डू दैट. सो दिस सेज दैट show that the following function satisfies CR conditions but not differentiable at 0,0. तो आपको इन क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाएगा जिसपे हमें चेक करना है. जैसे जो हमने ये चेक किया था, ये वाला फंक्शन, सो दिस यू कैन सी, यहाँ पे हमने पॉइंट पे नहीं चेक किया था बिकॉज दीज ux, uy, vx, ये जो डेरिवेटिव्स हमने निकाले थे,
they were always satisfying the CR condition. This was not point specific. This function is differentiable everywhere. And CR conditions are also satisfied everywhere. Means X और Y के ऊपर कोई condition नहीं है. So it's for all points. But otherwise, these kind of questions जो अब हम कर रहे हैं, इनमें आपको point given होगा. Whenever they are talking about differentiability. So let's see what function is given to us. So we are given fz is z bar square by z if z is non-zero and if z is zero. तो जीरो, ये डिफरेंशिएबल एट जीरो, जीरो का मतलब है ये z इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं. वो पॉइंट आपको x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स में भी गिवन हो सकता है और z की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सो z जीरो मींस ऑब्वियसली x कॉमा वाई इज जीरो जीरो, x इज जीरो, y जीरो. सो आपको ओरिजिन पे चेक करनी है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी. तो ये फंक्शन जीरो जीरो पे पहले तो डिफाइंड होना चाहिए. तो डिफाइंड तो वो है, क्योंकि अगर वो उसकी डोमेन में ही नहीं है तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी. क्योंकि कंटिन्यूटी की बात हम तब करते हैं जब फंक्शन उस पॉइंट वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में होता है. तो पहली बात तो वो फंक्शन वहां पे डिफाइंड होना चाहिए. सो जीरो पे आपको फंक्शन जीरो गिवन है. बाकी सबके लिए ये फंक्शन की डेफिनेशन है z बार स्क्वायर बाय z. राइट. सो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं. आपको दो चीजें शो करनी है. एक तो शो करना है कि ये सीआर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो भी ये इस पॉइंट पे, और एक शो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है. सो लेट्स फर्स्ट डू द डिफरेंशिएबल पार्ट. डिफरेंशिएबल की अब हम डेफिनेशन यूज करेंगे. राइट. क्योंकि अब डिफरेंशिएबिलिटी का जो फंडामेंटल तरीका है उससे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, एंड दैट इज यूजिंग दिस डेफिनेशन कि we will find this limit and show that it does not exist. क्योंकि अगर does not exist आ गई तो प्रूव हो जाएगा कि डिफरेंशिएबल नहीं है. So yeah, let me start with this. So आपको क्या करना है, z नॉट जो है आपको गिवन है जीरो. सो डेफिनेशन क्या थी f डैश z नॉट की, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट fz माइनस fz नॉट बाय z minus z naught. So let's substitute the value of z naught is 0. fz, अब fz आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, बिकॉज यू नो ये z इज द जनरल वेरिएबल. तो जनरल वेरिएबल मीन z इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स z नॉट, z इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो. लिमिट में हमें पता है बट इट्स नॉट इक्वल टू दैट. तो देयरफॉर आप fz की सब्स्टिट्यूशन ये वाली वैल्यू से करोगे. सो दिस इज z बार का स्क्वायर बाय z माइनस, and what is fz naught? Fz naught means f at 0. F at 0 means at z is equal to 0 the value of the function which is given to us is 0 divided by z minus 0. तो हमें z naught की just value substitute की है and we are left with this. Right? So let me write this here. Limit z tending to 0 z bar square by z. यही आया हमारे पास, माइनस जीरो तो चला गया. सो विच इज असेंशियली लिमिट z टेंडिंग टू 0 z बार स्क्वायर बाय z का स्क्वायर. सो नाउ यू सी दिस, दिस इज अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया है. जैसे आपके पास लिमिट के क्वेश्चन आते हैं, आपको लिमिट अब ये इवैल्यूएट करनी है, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा, क्योंकि z बार भी वही है. वी नो व्हाट इज z बार. z बार इज x माइनस आई वाई, z इज x प्लस आई वाई. तो 0 बाय 0 है, तो हम पाथ टेस्ट लगाएंगे. तो पाथ टेस्ट लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम x और y की फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे. सो ये बन गया ये. तो अब आप स्क्वायर ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे सीधा भी बता सकते हो कि विच पाथ वी विल बी चूजिंग फॉर दिस वन. सो y इज इक्वल टू mx. अगर हम पाथ चूज करते हैं तो उस पाथ के अलोंग ये है x माइनस आई एम एक्स, एक्स प्लस आई एम एक्स का होल स्क्वायर है, विच इज एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आई एम, 1 प्लस आई एम होल स्क्वायर. सो क्लियरली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ m, therefore not unique, therefore the limit does not exist. Okay. Yes, Pranshu, please ask your doubt.
मैम ये आपने z इक्वल्स टू z अप्रोचेस टू 0 कैसे कर दिया z नॉट से? Z नॉट पे चेक करने ना, ये तो बेसिक डेफिनेशन है आपकी अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी। z नॉट 0 दिया हुआ है, ओके हाँ, एक पॉइंट गिवन है ना जिसपे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो वो 0 ओके है। ओके मैम। ठीक है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। असेंशियली आपका क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको बताया था ये जो कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन है और डिफरेंशिएबिलिटी भी क्वेश्चन है, अगर आप बाय इनकी जो फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन यूज करोगे, दे असेंशियली बिकम्स द क्वेश्चंस ऑफ लिमिट ओनली। तो अगर एग्जिस्ट करनी होती है तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे कि प्रूव करो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, या चेक करो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो असेंशियली वो सारे क्वेश्चन ये पाथ टेस्ट पे ही आके खत्म होते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर। सो हमारा इस क्वेश्चन का एक पार्ट आंसर हो गया है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब हमने इसकी डेफिनेशन लगाई तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। सो वी हैव प्रूव दैट fz इज नॉट differentiable at 0, 0. So we are left with now the rest of the part. The rest of the part says we have to show that it satisfies CR conditions. Now there is one important point here. जो previous question हमने किया था CR conditions का, उसमें क्योंकि कोई point specific नहीं था, तो in general वो satisfy हो रहे थे. But यहाँ पे जब आपको पॉइंट सेटिस्फाई वाले क्वेश्चन मिलेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट वाला क्वेश्चन मिलेगा, दिस इज एक्चुअली वन क्वेश्चन ऑफ इट्स टाइप। ये इस टाइप का ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉइंट गिवन होगा, या हो सकता है सिर्फ इतना ही हो, जैसे आपकी ट्यूट शीट में जो स्टेटमेंट है, लेट मी सी इफ द ट्यूट शीट इज ओपन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या आई हैव दिस ट्यूट शीट हियर, so I can show you if you read the statement of this question number 3. So it tells you show that the CR conditions are satisfied at origin. तो ये पॉइंट स्पेसिफिक है, यही हमने अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ये एक ही पार्ट पूछ रहे हैं, ये नॉन डिफरेंशिएबल नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ CR कंडीशंस पूछ रहे हैं, बट ये पॉइंट स्पेसिफिक है। तो पॉइंट स्पेसिफिक में आपको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई नीड टू प्लग इन द चार्जर। Yeah, so let's do the rest part of the question. Okay, उसके लिए हमें u और v निकालने पड़ेंगे, because CR conditions के लिए तो हमें u और v चाहिए. So for that, let's just do the calculation, and we have to go back to the definition of fz. So fz is z bar square by z. So z bar square is this. This is z. अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So we can rationalize this one because we have to express this in the form u plus iv, right? So there should be iota coming in the numerator. हमें rationalize करना ही पड़ेगा. This is the general technique to get rid of, just like we get rid of radicals and powers from the denominator. So we have to get rid of iota also. So this will give me x minus iy ka cube, and in the denominator you get x square plus y square on multiplying these two. So open up the cubes. So I'm just directly writing. You can verify that calculation later. It's very easy. Everybody knows the formulas of a minus b cube. So you can open this up, and this is what you are going to get, right? So ultimately, कोई भी function given हो, कितना भी complicated हो, you will always be able to write it in this form, u plus iv. So this gives me that my u is x cube minus 3xy square over x square plus y square, and v is y cube minus 3x square y over x square plus y square. So but you remember this, आपको जो CR conditions चेक करनी है वो ओरिजिन पे चेक करनी है, बट इफ यू नो दैट ओरिजिन पे तो आपका फंक्शन 0 0 है, ये तो z नॉन जीरो के लिए है, z 0 पे तो आपका फंक्शन 0 है. सो दैट्स व्हाई हम वो वाले तरीके से इसको नहीं करेंगे. पॉइंट के लिए u और v की
निकालने हमें चारों डेरिवेटिव्स ही हैं, ux, vx, uy and vy, and later on CR conditions में substitute करना है. But we will be using their definitions of the first principle here. Now what is the partial derivative of u with respect to x? Del u by del x. So u is a function of two variables, right? So this is x plus delta x, or because we are actually finding ux at a particular point. Now since z naught is 0, so x naught plus I y naught is 0, x naught is 0 and y naught is 0. So when we are differentiating ux, that means we are looking at, let me write it this, we are finding the derivative of u with respect to x at a particular point 0, 0. तो जो आपकी जनरल डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है, x नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट माइनस u x नॉट y नॉट बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0. आप x में वेरिएशन लेके आते हो क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है, बट पॉइंट आपका x नॉट कॉमा वाई नॉट सब्स्टिट्यूट होगा और लिमिट इसकी 0 जाएगी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ux एट स्पेसिफिक पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट. लेट मी राइट इट हियर because this is something we have done in the chapter of multivariable. आप h भी यूज कर सकते हो इंक्रीमेंट के लिए, मैंने डेल्टा x यूज किया है, whatever notation you can use. So let's evaluate this limit that will give us the value of ux at 0, 0. So x naught y naught की पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So you will get delta x, 0 minus u 0, 0 over delta x. I hope this is clear. मैंने x naught y naught को 0, 0 डाल दिया है बिकॉज मुझे उसी पॉइंट पे ही डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए. डेल्टा एक्स इज अ वेरिएबल, उसको तो हमें लिमिट निकालनी है तो वो डेल्टा एक्स ही रहेगा, नीचे भी डेल्टा एक्स ही रहेगा. तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया. अब हम u की डेफिनेशन यूज करेंगे. वेयर इज u? u इज दिस जो आपने अभी डिराइव किया है बाय कन्वर्टिंग दिस वे. सो u इज x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मुझे क्या फाइंड करना है? सॉरी, आई हैव टू फाइंड u delta x 0. So let me write here, u जो हमने निकाला है वो है x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो u में y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट होना है और x की जगह डेल्टा x. सो y 0 मीन्स ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा. सो यू आर अल्टीमेटली लेफ्ट विद x क्यूब बाय एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग बट x. तो दिस इज डेल्टा x माइनस, अब u मुझे देखना है 0, 0 पे. तो जब u मुझे 0, 0 पे देखना है देन आई विल नॉट बी यूजिंग दिस बिकॉज ये जो u हमने डिराइव किया था ये हमने नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए डिराइव किया था. बिकॉज जो fz की ये वाली डेफिनेशन है ये z नॉन जीरो के लिए है. fz इज 0 एट z इज इक्वल टू 0. जब x y जो है आपका पॉइंट जो है z नॉट 0, 0 है उस टाइम पे तो फंक्शन आपका क्या है, एब्सोल्युटली 0 ही है. तो एब्सोल्युटली 0 मींस u भी 0 और v भी 0 एट द पॉइंट 0, 0. इज दिस क्लियर? यही डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है जब आप इधर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो क्योंकि ये लिमिटिंग फॉर्म में है, ये पॉइंट 0, 0 नहीं है, ये x, 0 टाइप का पॉइंट है तो आप u की ये वाली डेफिनेशन यूज करोगे. बट जब आप u 0, 0 पे निकालोगे तो आप फंक्शन की डेफिनेशन से निकालोगे, वहां से आपके पास 0 ही आएगा. सो जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया सो आई गॉट द आंसर टू बी 1. सो ये हमने ux निकाल लिया. हमने 4 डेरिवेटिव्स निकालने, ux, vx, uy, vy. We have to find these. One of them we have found ux using the definition of first principle. Yes, Uday. हम हमने पार्शियल डेरिवेटिव डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके क्यों नहीं किया? I tell you because जो आप पार्शियल डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला यूज करके निकालोगे ना, सपोज आप यहाँ से ux की वैल्यू निकालोगे, वो जो फॉर्मूला आएगा that will be the partial derivative at x, y नॉन जीरो. वो नॉन जीरो पॉइंट्स के लिए है क्योंकि ये वाला u देखो, आप ध्यान से देखो, ये x, y 0, 0 तो इसकी डोमेन में ही नहीं है ना बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है. तो ये फंक्शन, ये जो u और v है ये 0, 0 के लिए है ही नहीं.
ये आपको यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हो कि जो जिस fz से आपने ये डिराइव किए हैं वो fz था ही z नॉन जीरो के लिए। तो मैम तो अगर जो आप डायरेक्टली निकालोगे तो जो ये डेरिवेटिव्स आपको z मिलेंगे वो तो जो नॉन जीरो fz के। इक्वल टू 0 है उस पे यूज कर लेते हैं। सॉरी, तो जो सेकंड कंडीशन थी फंक्शन की fz इक्वल टू 0 एट z इक्वल टू 0 उसको यूज करके नहीं आना चाहिए। वो तो है ही, वो तो एब्सोल्युटली जीरो है ना। बट देखो ना आप, तो वो तो फिर यहाँ से तो वो ट्रिवियल आपको लगेगा, यहाँ से आपको लगेगा u इज एब्सोल्युटली जीरो, v इज एब्सोल्युटली जीरो। बट तो आप कहोगे ux uy ये सारे जीरो जीरो हो गए तो CR कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ये वैसे नहीं है, बिकॉज अगर आप जो बेसिक डेफिनेशन पे जाते हो, जैसे जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी या किसी भी डेरिवेटिव को निकालते हैं, इवन चाहे पार्शियल डेरिवेटिव को, हम कभी भी एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं होते हैं, हम हमेशा कहीं से आ रहे होते हैं उस पॉइंट की तरफ। सिंस देयर इज अ डिफरेंस, उस पॉइंट पे वो फंक्शन एकदम से जीरो बन रहा है, बट उसके नेबरहुड में उसकी वैल्यू किसी और फंक्शन से डिफाइन हो रही है। तो ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको जनरल डिराइव करना है, बट आप वहां से डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते हो क्योंकि वो डेरिवेटिव जीरो जीरो पे नहीं होंगे। तो आपको पॉइंट स्पेसिफिक, दिस इज नॉट ओनली ओके अबाउट मैम, जीरो थैंक यू। कॉमा जीरो, दिस इज अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। अगर इन क्वेश्चंस में आपको गिवन हो, जब भी आपको डेरिवेटिव है या डिफरेंशियबल्स हैं, जब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने हैं, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इसमें तो जैसे उस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा था, तो अगर हाँ अगर उस ऐसा पॉइंट मिले जिस पे फंक्शन चेंज ना हो तब भी हमें फर्स्ट नहीं, प्रिंसिपल से लगाना है। हाँ फिर वो वैसे निकल जाएगा, बिकॉज उसमें वो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी होगी, क्योंकि वो वैसे इट्स नॉट एन अजम्पशन, मतलब इतना ट्रिवियल नहीं है ये चीज, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज द काइंड ऑफ फंक्शंस यू हैव। जैसे अगर यूवी की बात करें तो यू सी जो ट्रबलसम पॉइंट है वो जीरो कॉमा जीरो ही है, यू और वी की कंटिन्यूटी में भी और डेफिनेशन में भी, क्योंकि सॉरी डिनोमिनेटर जीरो कॉमा जीरो पे ही नॉट डिफाइंड हो रहा है, मतलब जीरो बन रहा है, राइट। तो वो यस मैम। ऑलमोस्ट यही होगा आपको हर क्वेश्चन में ना, वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ही होगा जिसपे आपको निकालना होगा, उसके अलावा मैम मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ओके अगर मैम। आपको मान लो 1 पे निकालना है या 1 प्लस आई पे निकालना है, तो आपको बस फिर तो इस पार्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो पार्ट तो सीधा इधर चला जाएगा, फिर आपका एब्सोल्युटली उसी से हो जाएगा। बट बिकॉज द पॉइंट इज लाइक दैट, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ओके मैम। राइट। सो यस। व्हाट आई वाज टेलिंग, या सो ux हो गया। अभी आपको बाकी भी निकालने हैं डेरिवेटिव, uy vx vy। so I'm giving you this task, so you try this yourself। जैसे मैंने ये आपको एक कंप्यूट करके दिखाया है, तो आप ये तीनों बाकी कंप्यूट्स करो, मैं आपको वैल्यूज बता रही हूँ, बट आप ये वेरीफाई करोगे खुद से, so that आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे निकालना है। अगर मैम नहीं होगा then I will explain in the next class। दिस uy जीरो, ये जीरो आएगा और ये 1 आएगा। सो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो ux at 0,0 is same as vy, दोनों की वैल्यू 1 आई है, वो आएगी, आपको वैलिडेट करनी है, और ये दोनों क्या आ रहे हैं जीरो, जो आपकी दूसरी CR कंडीशन है uy is minus vx, तो वो दोनों जीरो जीरो आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो दिस शोज दैट CR conditions are satisfied at 0,0, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो अब यही हमने प्रूव करना था, प्रूव करो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है बट CR कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये जो थ्योरम हमने आपको बताई थी इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, कि सिर्फ CR कंडीशन सेटिस्फाई होने से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वी हैव जस्ट सीन एन एग्जांपल। बट अगर ये वाला जो एडिशनल रिजल्ट है ये क्या कह रहा है कि CR कंडीशंस भी सेटिस्फाइड है, प्लस एक और कंडीशन आप वेरीफाई कर लो कि उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस हैं, तब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो ये वाले रिजल्ट हम जो है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में यूज करेंगे, बट जहां पे जितना बोला है हमें उतना ही चेक करना है। सो ये हो गया एक क्वेश्चन। इसके साथ का दूसरा क्वेश्चन भी है जो आपको उसमें गिवन है ट्यूब शीट में, दैट यू कैन ट्राई, अदरवाइज वी विल डिस्कस देम। मैम यस मैम इसमें हमने जैसे पहले क्वेश्चंस में जो आपने पहले क्वेश्चन कराया था उसके अंदर अपने u और v की वैल्यू निकाली थी, फिर उनको डिफरेंशिएट कर दिया था। इस क्वेश्चन में हमने वो क्यों नहीं करा?
बेटा मैंने अभी वही एक्सप्लेन किया था, हाँ क्योंकि वो मैं हाँ वो क्वेश्चन जनरल था, वो पॉइंट स्पेसिफिक नहीं था वो, और जो ओके पॉइंट भी हो तो वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स नहीं थे, बिकॉज वो फंक्शन ऑलरेडी स्मूथली डिफाइंड है, उसकी डिवीजन ऐसे नहीं है। ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, दिस इज क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के टाइप ही ऐसे डिजाइंड है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपको चेक करनी है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। डिफरेंशिएबल कर देंगे मैम, ठीक है, या उस नहीं आया उस डिफरेंशिएबल। नहीं आ रहा, और सीआर कंडीशंस वाले यू और वी के लिए भी, क्योंकि यू और वी आपको, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट, देखो ux uy vx vy, ये हाँ जी वही है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स में चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। आपको लगता है कि ओरिजिन पे u और v 0 0 है तो इनके डेरिवेटिव्स भी 0 0 होंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। u और v 0 0 है, बट वो कहीं से कुछ तो वैल्यूज लेके ओरिजिन पे आके जीरो बन रहे हैं, बट उनके डेरिवेटिव्स जरूरी नहीं है वहां पे जीरो हो, राइट? वो फंक्शन की वैल्यू, अब कोई फंक्शन जीरो है बट डज नॉट मीन कि उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा, राइट? मीन्स इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट जीरो, इट्स जस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट्स टेकिंग वैल्यू जीरो। सो दैट्स व्हाई उनके डेरिवेटिव्स निकालने के लिए आपको जनरल डोमेन से निकालने पड़ेंगे बाद में, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने हैं तो आपको ये वाला जो हाँ, है ये मेथड यूज मैं देख करना रहा था पड़ेगा। क्या करें। इज इट क्लियर? हमें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है। हाँ वो आप, अब मुझे याद नहीं, हमने उस चैप्टर में एच शायद नोटेशन यूज किया था, सो इट कैन बी लाइक दिस, यू नो आपको जब, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है पार्शियल, तो आप टू वेरिएबल्स हैं तो आप एक्स वाले में इंक्रीमेंट लेके आओगे, वेरिएशन लेके आओगे, और वही डिवाइड होता है और उसी की लिमिट हम जीरो को लेके अच्छा, आप जाते ये हैं। वो ओके ओके, समझ गया ये मैं। डेफिनेशन पार्शियल डेरिवेटिव की हाँ यूज की है हमने। हाँ, जो आपने वो ट्रायंगल वाले से पहले कराया था एक हाँ जनरल। हाँ, डेल यू बाय डेल एक्स वो पार्शियल डेरिवेटिव वाला चैप्टर है, डेल यू बाय डेल वाई, ऐसे ही फिर आप डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, ये चार डेरिवेटिव्स निकालोगे ऐसे, ये वही है। तो ये डेल्टा एक्स यूज किया है, आप एच यूज कर सकते हो, क्योंकि ये तो कुछ भी है, दिस इज जस्ट अ वेरिएशन जो हमें चेंज करना होता है, अब बाद में उसकी लिमिट तो जीरो ही जानी है, तो आप वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हो उसके लिए, right? So let me just do one more question. So this is a different question, so it says that determine the point where CR conditions are not satisfied. So आपको एक function given है fz is z times real z, आपको एक पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे सीआर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो इट्स लाइक हमें सीआर कंडीशन हम निकालेंगे और फिर देख लेंगे कि क्या वहां से कंडीशंस आ रही है कि नहीं। सो लेट्स डू दिस। सो इसको हमें x प्लस आई वाई में सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z? x x only. Okay, so we will get x square plus I xy. So this is u plus iv. This gives me u is x square, v is xy. बस अब हम CR conditions use करते हैं। ux is vy होना चाहिए और uy minus vx होना चाहिए। तो ux क्या ये है? साथ में रियल जेड लिखा है मैम, आर ई re, रियल जेड yes, है। real z. ux is 2x, vy is x. vy आप निकालो यहां से, क्या आएगा? x. सो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कब होगा? अब ये 2x इक्वल्स टू x कब होता है? 2x इक्वल्स टू x कब होता है? एक ही मीन्स यहां से एक ही पॉइंट आया ना, 0। 2x इक्वल्स टू x इज ओनली गोइंग टू बी सेम एट x इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली अगर हम uy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, uy तो 0 है बिकॉज x स्क्वायर ही है u, तो ये 0 है। और vx की वैल्यू डालेंगे, माइनस y हो जाएगा, तो यहां से आया y 0। तो दैट मीन्स जो CR कंडीशंस हमने सेटिस्फाई कराई हैं, so they are satisfied only if x is 0 and y is 0. So we can say CR conditions are satisfied only at x is 0 y is 0 in terms of z, it is the point z equals to 0. So आपका क्वेश्चन क्या था? Determine the points where CR conditions are not satisfied.
So therefore CR conditions are not satisfied at every नॉन जीरो z, क्योंकि इनकी सेटिस्फाई होने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट निकला है। तो ये रिवर्स क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि जहां पे नहीं सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमने क्या किया, वो पॉइंट निकाल लिया जहां पे सेटिस्फाई हो रही हैं और उसको हमने डोमेन से निकाल दिया। सो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पे भी इस पर्टिकुलर फंक्शन की CR कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, सिर्फ 0,0 पे हो रही। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। राइट, तो दैट मीन्स पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में z नॉन जीरो, एट एवरी z विच इज नॉन जीरो, ये जो फंक्शन है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। यहां से ये इंप्लाई किया जा सकता है ना कि ये फंक्शन पूरे नॉन जीरो, हर नॉन जीरो वैल्यू के लिए नॉन डिफरेंशिएबल है, बिकॉज अगर डिफरेंशिएबल होगा तो CR कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम जो हमने पहले करी है कि जैसे डिफरेंशिएबिलिटी आएगी तो CR कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इफ यू जस्ट, हमने कहा जो पहली थ्योरम हमने की है दैट सेज डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज CR कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इसका इक्विवेलेंट वर्जन क्या है? CR conditions not satisfied will imply non differentiability. So ये क्वेश्चन से हम ये भी इंप्लाई कर सकते हैं कि एट ऑल z नॉन जीरो ये फंक्शन जो है क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जीरो की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि दैट विल जस्ट मेक द क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, वो फिर से वही चीज हो जाएगी कि पॉइंट स्पेसिफिक हो जाएगा, बट एटलीस्ट आई कैन से दिस। इज दिस क्लियर? Is this clear to everyone? Okay, we have last 2 minutes of the class left. तो हमारा जो last topic बचा है वो हम next time करेंगे. So next week you can tell me any time of your choice because मेरी भी और कोई classes नहीं है, but so you decide among yourselves and let me know a suitable time on Monday possibly so that we can have extra class. मैम इसके बाद कितने चैप्टर्स रहते हैं? मैम इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा? हाँ, मतलब पॉसिबली 1 hour 1 hour 15 minutes इतना टाइम चाहिए हमें। सो उसके अकॉर्डिंग आप एक टाइम बता दो, सो फिर फिनिश हो जाएगा। एंड आई वांट दैट लेट इट बी फिनिश बाय मंडे ओनली। मैम एक बार वो बता दो कि किसमें हम लोग डायरेक्ट ux इक्वल्स vy कर सकते हैं और किसमें हम लोग लिमिट यूज करना होगा? हाँ, वो यही है, बस वो इसी तरह का क्वेश्चन है जो ये स्टेटमेंट मिलेगी ना आपको कि शो दैट CR कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट, जिसमें पॉइंट गिवन होगा ना कि इस पर लास्ट वाले में भी तो पॉइंट निकालने बोले थे, फिर क्यों हम लोग ux इक्वल्स vy दैट्स अ करें? रिवर्स क्वेश्चन। उसमें तो वो कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स है बेसिकली, ये मींस देयर कैन बी मोर देन वन पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट गिवन तो नहीं है ना आपको क्वेश्चन में कोई 0,0 या 1 प्लस आइटा या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यू आर नॉट गिवन एनी पॉइंट जिस पे आपको चेक करना है। तो ये उल्टा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई पॉइंट है क्या कि जहाँ पे CR कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सो ये रिवर्स क्वेश्चन तो आप ऐसे ही करोगे ना कि आप, अब ये आप इन जनरल भी ट्रू है ना, तो आपको जैसे मैं पूछूं कि पूरे x, y प्लेन में y इज इक्वल टू x कब होगा, सो यू विल गिव मी एन आंसर कि ओके दिस इज द लाइन, there are infinitely many points where y is equal to x. So यहाँ पे वही है कि हमें conditions given है, हमने उनकी intersection, क्योंकि वो दो lines हैं, वो दो conditions हैं, तो उनकी intersection निकाल ली कि जहां दोनों conditions satisfied होगी वहां से हम निकाल लें। तो ये पॉइंट हमने निकाला है कि 0,0 पे ही सिर्फ सेटिस्फाइड है, ओनली एट 0,0, बाकी हर जगह नॉट सेटिस्फाइड है। बट जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पॉइंट गिवन था और प्रूव करना था आपको, चेक नहीं करना था, शो करना था आपको। CR कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई जैसे इस क्वेश्चन में, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी अगर होती तो वो CR कंडीशन सेटिस्फाइड होती उसमें, बट ये मैं एडिशनल चीज बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है इन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी। मैं बता रही हूँ डिफरेंशिएबिलिटी का सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका, यही जो ये लिमिट्स निकालोगे, अदरवाइज एवरी क्वेश्चन विल बी कनेक्टेड विद CR कंडीशंस। विल डू वन और टू मोर क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम, सो आपको क्लियर हो जाएगा ये।
Yes, Ma'am? is it fine? मैम एक बार पिछले क्वेश्चन में यू वाई बता दो कैसे होगा ये इसी वाला को ना? यस हाँ, मैम यू वाई तो ये डेफिनेशन लगेगी, 1 मिनट। यू वाई के लिए you will be using the formula limit। अब ये आप उसमें चेंज करोगे, x0 ये हो जाएगा 0 प्लस के माइनस u 0,0 बाय k। y वाले में आप चेंज करोगे k, x, y तो 0 0 ही है क्योंकि ये uy हम 0,0 पे ही निकाल रहे हैं, तो ये डेफिनेशन लगेगी। तो जब आप u की डेफिनेशन यूज करोगे तो x 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये तो 0 ही बन रहा है, देखो x ऊपर है ना, तो ये दोनों टर्म 0 बन जाएंगी, तो ये 0 बन जाएगा, ये है ही 0, u 0,0 वो तो है ही 0 बाय k, तो ये इसलिए 0 आ जाएगा डेरिवेटिव। सिमिलरली vx भी 0 आ जाएगा और vy आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यू विल गेट 1। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम u of 0,0 मैम 0 by 0 फॉर्म नहीं बन रहा। नहीं u यही तो बताया था, u of 0,0 यहाँ से नहीं ना निकालना, u of 0,0 तो यहाँ से निकालना है ओके फंक्शन की ओरिजिनल डेफिनेशन, क्योंकि ये u 0,0 के लिए है ही नहीं, ये था ही नॉन जीरो के लिए। Okay, so we are done with the time. So on Monday we'll have the class. So tell me a time suitably, otherwise I will have to see. Right? I'll take your rest of the doubts next time. Thank you.